Hi everyone. Welcome to our show We Are the Architects. I'm architect Aditi and today we are here with an amazing topic Vastu architecture. So let's get ready and dive deep into the ocean of Vastu architecture. So please welcome our guest, architect Priyashi. Hello ma'am, welcome to our show. Thank you so much, Aditi. First of all, congratulations for your new venture. I was really excited to see your podcasts, and thank you so much for giving me this platform so that I can share my knowledge with your audience and our mutual architects, friends, and fellow architects. Okay, so I am architect Prayashi. I'm a 2013 graduate from Gateway College of Architecture and Design, Sonipat, and have been practicing since then. In 2020, just it was lockdown and I was just giving a plan to a client of mine, and that client actually changed everything according to his vastu consultant. तो मेरे तो पे आ गई थी कि what is this यार, मैं एक तो बना रही हूँ, I've done, because it is not that easy, no, you're doing something and the vastu consultant, he has changed everything. So then I was like, started digging. I started knowing what is Vastu and all that. And then I took some courses and I started applying those principles on my life. And after seeing the changes, I mean, it blew everything, you think of something according to Vastu, if you apply those principles and you go forward, actually the things happen, Okay. you know so that's how I was like. Right now it used to happen that students को भी यही बोलते थे, वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता, just follow करो. And because architecture में we were never taught about vastu, we were only taught about sun path and sustainable architecture, Right. right? So हमारे mind में वो है ही नहीं, because we do not come from that school of thought. But after applying the vastu principles into my life, I now know that हाँ, इनसे फर्क पड़ता है. It is basically, see, architecture is basically the exteriors, the functionality of a space, you Right. can say. And Vastu, it is the energy alignment. So the Okay. intangible aura जो हमारा आसपास create हो जाता है because of a good Vastu alignment, that intangible thing is Vastu. तो Okay. या तो इफ यू लाइक आपको अब एक स्पेस है, उस स्पेस में जाने के बाद इफ यू आर फीलिंग पीसफुल, तो आपको पता है दैट इट इज अ प्रॉपर वास्तु अलाइंड एरिया विच वी हैव कम टू. It is like that. Hmm. Yes. Okay. So I just wanted to know, as you have enlightened us with this a very sweet beginning, we always come across this particular term Vastu. Either we are designing or we are getting our project designed. Either you are a client or you're an architect, it always come in front of you and stands like a pillar. Right? Yes. So what is this Vastu and how is this related to architecture? Yes. Thank you so much for this question. Vastu is an ancient Indian science, okay, of architecture only and spatial design that focuses on harmonizing the buildings with natural energies. You have the 9 planets. You cannot see them, but they are there. 9 planets are there. All the 5 elements with which we are made up of. True. Everything is made up of 5 elements. Right? We balance these 5 elements and the space is harmonized. We do only that. Every element has a particular direction. तो उस एरिया का फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है, and that's how we balance our home and hence our life. So to have a, my mera vastu, the firm which I'm running is called Vastu Pran. So prana is basically the life force with which, अगर life force नहीं है, अगर breath नहीं है, अगर प्राण नहीं है, तो we are dead, right? तो it is basically that. और हमारे घर में अगर हम जा रहे हैं, इट इज एस्थेटिकली एवरीथिंग इज गुड, बिल्कुल हमने बिल्कुल इंटीरियर डिजाइन करके हमने बहुत अच्छे से घर बना लिया है. बट पीपल लिविंग देयर, इफ दे आर नॉट हैप्पी, अगर वहां पे लड़ाइयाँ चल रही है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, दर्द है इधर उधर, हेल्थ वाइज समथिंग इज गोइंग ऑन, यू नो अगर सब कुछ आपका प्रोफेशनली सब, लेकिन बच्चे के घर पे तबीयत खराब है, तो Right. व्हाट डू यू थिंक, कैन यू बी हैप्पी एट योर वर्क प्लेस? Not at all. यस, तो वही सब पूरा अच्छे से हार्मोनियस लिविंग कैसे हम करेंगे, उसके लिए वास्तु इज इम्पोर्टेंट. Okay. इट इज लाइक दैट. Okay. So, knowing about Vastu, let's move to a very basic project everybody is dreaming of, their own house, Yes. their residence.
Residence has n number of spaces, going from living area, bedrooms, kitchen, washrooms, and many more another spaces. So does Vastu is implemented to each one of the room, or it's to a particular space? Starting with, if it's possible for each one of room, then I would like to know with the very first room, the moment once enter in a residence is a living room. Is it applicable for a living room also? And if yes, then what is the layout one should prefer? What are there some colors? What are the colors, color palettes we should go for? Everybody wants harmony, peace, and wealth coming in. So Yes. will it take us somewhere in living room taking care of Vastu? Yes, living room. First of all, we will have that entrance. That is very important. Everybody, it is also a myth कि हमें हमेशा north ये east facing घर लेना चाहिए. तो that is also there कि हम अगर east से entry कर रहे हैं, तो आजकल हम we are living in a lobby. मतलब एंड लिफ्ट लॉबी होता है, उसके बाद एंट्रेंस होता है. तो बेसिक हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है दैट द सनलाइट शुड एंटर आवर होम. राइट, तो एंट्रेंस हमारी जो भी हो, हमारे 45 हमारे हर उसमें 9 ग्रिड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वी विल हैव दैट एंट्रेंस. एंट्रेंस भी हर साइड्स में, मतलब ऑल द 4 डायरेक्शंस हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंट्रेंसेस. वो हमें Oh, ग्रिड पे बैठ के ही पता चलता है. okay. ठीक है, हम ग्रिड पे बैठेंगे और तब वी विल कम टू नो कि कौन सा एंट्रेंस पॉजिटिव है या नहीं है. और नहीं भी है तो वी विल डू समथिंग अबाउट इट. वी वोंट डू एनी तोड़ फोड़. ऐसा नहीं होगा बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं ना. Very right. और एक हमारा लेआउट है, एक फ्लोर पे 3 या 4 घर होते ही हैं. एवरी होम कैन नॉट बी वास्तु अलाइंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन. पॉसिबल ही नहीं है. मतलब या तो हम घर ही ना लें, सबके पास प्लॉट बनाए और अपना घर अलग से करें. दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज नॉट प्रैक्टिकल बेसिकली. सो एवरी डायरेक्शन, वेदर इट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एवरी डायरेक्शन हैज गुड एंट्रेंस. पॉजिटिव एंट्रेंस सब जगह है. ठीक है, एक तो ये वाला दिमाग से मतलब हटा देना चाहिए कि हमें साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग घर, वेस्ट एंट्रेंस या साउथ एंट्रेंस वाला घर नहीं होना चाहिए हमारा. Okay. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. तो एंट्रेंस हो गया हमारा, उसके बाद इट कम्स इन लिविंग रूम. बेसिकली लिविंग रूम में नॉर्थ, व्हाट हैपेंस इज चारों डायरेक्शंस है हमारी. चारों डायरेक्शन में एक एक एलिमेंट है. उन Right. एलिमेंट्स के एट्रिब्यूट उसको प्लेस कर. Okay. राइट, लेकिन जो इंटीरियर्स में हमने कलर्स यूज, वो अगर गड़बड़ कर दी, सपोज वी हैव अ किचन इन द साउथ ईस्ट. ठीक है, साउथ ईस्ट में हमारी किचन हो गई. बट वाइल गोइंग फॉर इंटीरियर्स, हमने पिंटरेस्ट पे हमने स्क्रॉल किया और हमें व्हाइट ब्लैक कलर का कैबिनेट्स पसंद आ गए. ब्लैक ग्रे नॉर्मली बहुत ज्यादा वो होता है ना. तो लेकिन अगर साउथ ईस्ट फायर डायरेक्शन में हमने ब्लैक कलर डाल दिया, ब्लैक कलर बेसिकली एसोसिएट्स विद वाटर. तो what do you think will happen? That is fire zone and water Fire, element. water, it's gonna be either steam or fire gonna get extinguished Exactly. or something like that. Exactly. So that's why colors are also very important. So for living room also the colors are Yes, yes. important? Every room. Living room हमारा northeast में है. True. That's why white is, the base, safe zone. Because just white या off white है, sorry. White and off white ये हमारा space element का color है. ये हर जगह चल जाएगा. Because Okay. space is a third dimension. If I may say, see, northeast is water element. अगर आप यहाँ पे ड्राइंग, आई विल गिव यू द ड्राइंग, यू जस्ट पुट इट समवेयर. नॉर्थ ईस्ट अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट इज द वाटर एलिमेंट. ठीक है, वाटर मतलब जितने भी ब्लू के टिंट्स एंड शेड्स हैं, Okay. वो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जोन में आ जाएंगे. ठीक है. साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट का है, हाँ. तो वहां पे जितने भी रेड के ह्यूज एंड टिंट्स सारे रेड के आ जाएंगे. ठीक है. उसके बाद साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट इज ग्राउंड एलिमेंट. मतलब वहां पे मिट्टी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं Brown. वो आ जाएंगी. Okay. तो हमें जैसे जिसमें स्टेबिलिटी चाहिए, वो वाले रूम्स हम Okay. ऐसे ही. नॉर्थ वेस्ट इज एयर एलिमेंट. एयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इधर आएंगी. ठीक है, तो ऐसे हमारा चारों डायरेक्शंस आ गई. और सेंटर में होता है हमारा ब्रह्मस्थान, विच शुड बी एम्प्टी. जो हॉल होता है हमारा, दैट शुड बी एम्प्टी. तो और जो ईथर है, ईथर का कलर है व्हाइट, व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट. Okay.
So it's not particular about one wall. It is about all the four walls in taken into one direction. जैसे वो पूरा का पूरा कमरा ही हमारा नॉर्थ में है, हम Yes, वैसे zone. सोचेंगे. Yes, Because yes, people yes. might get confused. That's why I was more interested in this podcast, because I wanted my fellow architects friends also to know. See, what happens is it is not separate. में जैसे हम functionality consider Right. functionality, we consider the sustainable aspects, we consider the climate, we consider everything while designing. So True. why not True. बिल्कुल सही. सिटी में भी हमें यही बोला जाता है कि हमें साउथ वेस्ट में अगर सनलाइट चाहिए अंदर, इफ इट इज इन द कोल्डर रीजन वी वुड वांट टू हैव ग्लास देयर, एंड इफ इट Yes. इज अ हॉट रीजन वी डू नॉट वांट. True. सेम प्रिंसिपल अप्लाइज है. Okay. हमें वहां से सनलाइट आ रही है तो ज्यादा खुला रहेगा, ईस्ट वाला डायरेक्शन सबसे खुला रहेगा, तो वहां से सनलाइट आएगी हमारे, और हमें हमारे एक तो सनलाइट से किल होते. वो जो अपना स्पेस का जो एम्बियंस है जो हमें क्रिएट करना है वो ऑटोमेटिकली ही हो ही जाता है. So Okay. it's one and the same thing. Okay. That is what I could relate. कि तो हमें पढ़ाते हैं, बस ये एंगल नहीं दिया हुआ ये बोल के कि ये मिथ है ना, Okay. तो यही इसी मिथ को हमें ब्रेक करना है. And It we is have like to, that. enlighten us with Vastu so that we can bring it in our projects. True. Yeah. हाँ. Because Okay. we do not have the knowledge, अब हम नहीं कर रहे, हम क्या कर सकते हैं, तो हमें वही knowledge ही put in करनी है कि that this is important, this is actually not a myth. Okay. Moving on, I want to know about a very important room. Everybody wants calmness. इतना hectic work life होने के बाद, when you go and enter in your bedroom, you need peace. You Yes. need stability so that you are fresh again for the next morning Next and you are on morning. your toes to do your Yes, best. yes. So, what things, when we talk about Vastu, what things we should look for to have that level of stability? Yes. So, first of all, warmth. मतलब you were saying that it is in the second position, but for my clients, I like हमें सोना ही. Yeah, I have got this from a lot of my clients. So, but they do not realize कि हमें suppose recharge अगर हम नहीं हुए अच्छे से, we won't. अगर हमें उसमें वो fuel है हमारा, that sleep, that 8 hours of sleep, 6 to 8 hours of sleep, it is a fuel for us. अगर वो हमें अच्छे से नहीं मिला तो how will we take on our day, next day, है ना? Definitely. So this is very rightly said what you have said, that second room is very important, which is the bedroom. A bedroom में जो couple वाला direction है should be south west. स्टेबिलिटी का डायरेक्शन जो है हमारा साउथ वेस्ट जोन में अगर हमारा रूम आ गया, सनलाइट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वार्मथ हमारा सेटिंग सन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो अब जब रात को हम सो रहे हैं तो द वॉल्स automatically revive of energy for the next day. One should not go for bright colors. One should go for very subtle and beige, Yeah, cream, beiges and pastels. है ना? yes, One वो can ज्यादा go for it. देखने में भी अच्छा लगेगा. Actually, what वास्तु does is, मैं आपको बेसिक उसका वो बताऊं. See, you have two options. एक सिचुएशन तो सबकी लाइफ में सेम ही आती है, right? Okay, तो if what the difference if you are living in a vastu aligned home and if you are not living in a vastu aligned home in a property, and if you're doing something also, अगर आप सही डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे तो क्या होता है, that I want to say you. और जितने भी रेमेडीज है उन सबका एक्चुअली व्हाट इज द रीजन या Root cause. रूट क्रॉस बोल लो, उसका रीजन क्या होता है, उसका ये होता है कि हमने एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हमने एक पर्टिकुलर चीज ले, तो क्या निकला, हमारा जो भी रिएक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन आवर एक्शन. Action is coming from our mind, and that mind is controlled by our subconscious mind, and that subconscious mind अगर हम देख रहे हैं कि एक एंगल सही है, सही डायरेक्शन में सही चीज प्लेस्ड है, तो within 45 to 60 days we get to see the results. Okay. Yeah, this I have heard from many, like when I scroll some Vastu architectural talks or some Vastu consultant. Now I'm hearing from you also. It's like it's It's tried already and there. tested. मैं ऐसे ही believe नहीं किया. It is like I was not a believer only of Vastu. Yeah, I know. And now I am promoting Vastu. See, and मेरे clients भी ना have seen, मैंने जो खुद पे भी नहीं किया suppose, and मेरी problems अलग है, उनकी problems अलग है. Very true. तो मैंने उनके साथ भी जो ग्रिड के solutions, it has worked. Within 45 to 60 days, I have seen the results there. And most सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, जब the thank yous which
comes to me, कि एक because they problem are solve. peace, they feel peace at their Exactly. home. And I think residents, if you don't find peace, there's no Use, yes. meaning of coming home. You can stay outside in a hotel and spend money if Yeah. you don't get that thing. Okay. That piece is very important. Okay, right. This is interesting from a main grid to subgrid, and subgrid यस, also वही has. पार्ट टू होल एंड जो हम आर्किटेक्चर में करते हैं वही सब चीजें इसमें हैं. इट इज दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमें फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक्स के साथ साथ तो जस्ट वही दैट इज इट. Okay, यस, फंक्शनैलिटी हम वैसे भी देखते हैं, मतलब दैट इज इन आर अब 5 साल स्कूल के और बाकी that उसके has बाद. been injected in us. Yes, very true. Very true. Cherry on top. बट हमें जस्ट ये बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम एन इंडियन एंसेस्टर्स, बाहर हमें मास्टर आर्किटेक्ट्स में पढ़ाया ही नहीं, उनको पता नहीं. और वैसे पता है व्हाइट हाउस इज ऑन आर्किटेक्चर, ये वास्तु अलाइनमेंट है. Very nice. यस, तो मतलब केस स्टडीज अगर हम देखने बैठे, ऑल द मंदिर्स, ऑल द टेम्पल्स, एवरी टेम्पल इज वास्तु अलाइन्ड. Talking about the kitchen and the puja room, first of all, in kitchen, what should be the alignment? We talked about the subgrids, right? So what is the alignment of those major counters, like the place for washing, the place for cooking, the place for chopping? That is also specific. And in नॉट चॉपिंग वॉपिंग तो नहीं, बट प्लेटफॉर्म जो है उसमें हमारा जो साउथ ईस्ट वाला जोन है वहीं पे अगर हमारा बर्नर है एंड मेन फंक्शनैलिटी और जो फंक्शन है किचन का इज कुकिंग, तो उसके right, लिए हमें फायर चाहिए ही चाहिए. तो फायर जोन में अगर फायर है तो इट इज द बेस्ट. okay, ठीक है. किड्स ठीक रूम है. में अगर हम देखें तो नॉट एयर एलिमेंट, जैसे चुलबुले से होते इधर से उधर भागते रहना एंड ऑल दैट, तो उसके लिए हमें एयर एलिमेंट चाहिए. तो Okay. उनको हमें स्टेबिलिटी, उनको पीस नहीं चाहिए. अगर बच्चा पीसफुल है तो मतलब गड़बड़ है. Development is राइट. zero. यस. तो हमें जो चाहिए एक एज के अकॉर्डिंगली अगर उस चीज को हम वहां पे प्लेस करेंगे तो ही फायदा है. इट Right. इज लाइक दैट. तो Okay. हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं करते बिकॉज एयर एलिमेंट. नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो वो उसका एट्रीब्यूट ज्यादा डेवलप होंगे. एक चुलबुला सा चाहिए ना, बच्चा अगर हाँ. शांत हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा. Understood. Very या तो well वही said. चीज है. Okay. मंदिर के लिए हमें मंदिर का स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, एज इंडियंस ऑफ एनी रिलीजन, पीपल आर वेरी पर्टिकुलर बिकॉज पूजा पाठ हर घर में होता है, नमाज पढ़ी जाती है, पाठ पढ़ा जाता है ना. सो व्हाट इज द परफेक्ट कलर, the designing, the orientation, what things we should look for when it comes to puja room designing? Because puja room की बात होती है ना, दादी, मम्मा, and sometimes papas also, they are very much interested. Kids are Yes. not bothered, but dadi and mama are very interested कि भाई Yes. ऐसा चाहिए. So Yes. what, as a vastu architect or a vastu consultant, we should talk about? ओके, तो नॉर्थ इज फॉर मनी, एज आई सेड, ईस्ट इज फॉर वेल्थ हेल्थ, एंड हम दोनों को कंबाइन करेंगे. नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा ईशान कोण है, वहां पे हम ईशान. अपना पूजा घर रखेंगे. Okay. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफ द हाउस, वी गो टू द सेंटर ऑफ द होम एंड वी सी वेयर इज द आर नॉर्थ ईस्ट एंड वी गो देयर एंड वी कीप द मंदिर. अब मंदिर में रेड लाइट या फिर रेड कलर का जो मैट होता है, दैट शुड नॉट बी देयर बिकॉज रेड इज अगेन व्हाट कलर? Fire. फायर. देन द सॉफ्ट थिंग्स, या कर्टन्स हो गए, वी कैन चेंज. जो ये है टेंजिबली है, बट वी कैन Tangibly. चेंज अकॉर्डिंग टू सीजन्स एंड एवरीथिंग वी कैन चेंज. True. देन दैनिक वास्तु में यू हैव टू लाइक क्लीन योर स्पेस एवरी डे. जो डी क्लटर है, इलेक्ट्रॉनिक का क्लटर, हम जो रखते हैं ना कि कभी काम आएगा, वो वाली पुरानी चीज नहीं तारें, नहीं करनी. पुराने फोन, बिल्कुल नहीं चाहिए. पुराने गैजेट्स. And surrounding clean, especially the northeast corner. But how to convince the family members, the seniors, mama, papas, उनको तो daddies? वास्तु They are strict with, ये पुरानी वायर्स हैं, काम आएंगी. ये 2 मीटर वायर बच गई है, ये काम आएगी. ये स्विच काम आएगा. They keep. साउथ वेस्ट में एक स्टोर रूम सा बना के उसमें भी प्रॉपर्ली अलाइन करके बॉक्सेस में यू कैन डू हाँ, ऑन this द इन I द want साउथ to. वेस्ट. This I really want to talk about after puja room. That what about the storage? Because हाँ, जो साउथ वेस्ट में, क्योंकि हमें एज आई सेड साउथ वेस्ट में सनसेट होता है एंड वी डू नॉट वांट द हार्श सनलाइट टू लाइक enter our home because morning sun तो it's okay, you have the UV rays and it's good for our skin and everything. रात वाला setting वाला sun जो है that is not good for our skin also, not for anything. तो वो setting sun जो है वो तो हम साउथ वेस्ट की तरफ हम बड़ा
भारी भारा चीजें रखते हैं। तो लेट मी कंप्लीट माय नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट। तो मंदिर में सब अगर व्हाइट है तो बहुत ही बढ़िया। हम्म आइडल शुड नॉट बी मोर देन लाइक इतना बड़ा-बड़ा जो आइडल्स होता है दैट इज़ आल्सो नॉट बिकॉज़ वो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है एंड दीज़ आर वेरी सीरियस थिंग्स मतलब ऐसा हमें लगता है कि कोई बात नहीं, बट नहीं, वी शुड नॉट डू दैट। ओनिक्स लगाते हैं, ओनिक्स इज़ ओके एंड जाली वर्क एवरीथिंग इज़ ओके प्रोवाइडेड इट इज़ क्लीन, नो रेड्स इन दिस एरिया and it should be properly clean. There should not be any storage above. राइट ड्रॉअर चाहिए ऑब्वियसली मंदिर का सामान रखने के लिए, यू कैन कीप इट ऑन द साइड्स और नीचे, बट डू नॉट क्लटर इट, डू नॉट क्लटर इट। कोई कोई लोगों के घर में मैंने देखा है बर्तन, जो मंदिर के बर्तन होते हैं दो वो अलग होते हैं एंड दे पाइल देम देयर ओनली, तो वो भी गलत है, वो मैं फिर हटवाया है बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मंदिर वाला एरिया शुड गिव यू पीस। अगर आप वहां पे 10 मिनट मेडिटेट कर रहे हो तो उस 10 मिनट में आपको वो क्लटर नहीं देखना है। आप इमेजिन करो ना, आप देख रहे हो जो, वही आपके माइंड में आएगा ही आएगा, दैट यू कैन नॉट स्टॉप दैट। वेरी ट्रू ओके तब बाजार से नया तब नया ही आता है। तो अगर आप प्रॉपर्ली मेंशन करके इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग इट प्रॉपर्ली, देन आपको वो मिल भी जाएगा, आपका पैसे भी बच जाएंगे एंड वैसे तो ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, जस्ट सेंड इट अवे, बट फिर भी ओके क्लोथ्स का पाइल्स आल्सो, लॉट मेनी हाँ when we क्लोथ्स। talk about your bedrooms or the wardrobes, it's like people go for lots and lots of space but end up with piles. So how to deal with, is it good thing that to have more and more cupboards, almiras in your bedrooms so that you तरफ रखो ना, नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खाली करके साउथ रूम वेस्ट में की। भी साउथ वेस्ट की यस यस यस, अलाइनमेंट शुड बी लाइक दैट। आपको अपना हम्म सनपाथ याद रखना है और हर एक कमरा डिजाइन करना सॉरी डिजाइन करना। okay moving on to the smallest room, smallest space of a residence but the most useful or the most required one, these are our washrooms. Oh yes, washrooms, Cannot stay without them. disposables. Yeah. Yes, So yes, yes. where, like the layouts, the placement, first of all, the placement, of course, in which direction, inside the layout has to be taken care of, or it's okay. And the colors, like tiles and all, we go for. So, what are the colors using glass and various materials? Okay. Washrooms में basically it is the disposal energy, right? So पहले what used to happen is kitchens के अंदर, हमारे घर के अंदर washrooms होते ही नहीं थे। Right. So it is not बाहर there होते in थे. हमारा विश्वकर्मा प्रकाश में it is not like mentioned, but नॉर्थ ईस्ट में वो WC नहीं आना चाहिए, अच्छा, ठीक. वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ब्रह्म स्थान में नहीं आना चाहिए, ब्रह्म स्थान में पिट आना इज द रॉन्ग Disaster. yes, it is a disaster, Okay. it is a disaster, you should not have any pit in the ब्रह्मस्थान। जितने भी Okay. पिट्स है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जितना भी नीचे वाला साइड है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है. बैल्कनी जब वो हमारा स्टेप अप होता है वो साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए, हम्म ठीक है। और वॉशरूम में हमें ख्याल रखने के लिए ऐसा यही है कि क्लीन रहना चाहिए, द WC लिड शुड बी क्लोज्ड ऑलवेज, है ना। Okay. इट शुड बी बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ वाटर, तो अगर हमारा सन अच्छे से सन आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो एरिया ड्राइड अप रहेगा, तो दैट इज लाइक अ थिंग यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। Okay, after talking about each and every type of a space, the major space, I would say, in a residence, a very important question. Like, I think 60% of our population, or more than 50%, I can say, not to be very precise, are in flats, राइट। right? We just had a conversation on this in the very beginning that builders might give you one flat out of the four in a floor, on a single floor, which is vastu oriented, but rest are not. So what, as a owner, if I'm buying that project, a particular flat, what, as an architect or a vastu consultant, we should think about, so that whether it's not properly vastu aligned, that flat, but it is yet peaceful with my few amendments, people are becoming more and more concerned about it. यस, वेरी ट्रू। So how you should take care, and being an owner of a resident specifically, because as a owner, what we should talk about and what we should think
to do those amendments? Good. There are like two things. One, you are going to buy a house, and secondly, if you are living in a house and you want to do some remedies. So, ठीक है, हम True. दोनों we will take. The main thing you see is the Brahmasthan, the center of the house. में staircase नहीं होनी चाहिए, washroom नहीं होना चाहिए. मुंबई के बहुत सारे प्लॉट्स में ऐसा है कि वहां पे किचन होता Center है में. या वॉशरूम, ऑटोमेटिकली वो लेआउट ऐसा सा प्लेस हो जाता है कि सेंटर प्लेसमेंट में सेंटर में ही हमारा कुछ ना कुछ हॉल की जगह कुछ ना कुछ है, तो वो वाली चीज आपको कंसिडर करनी है कि ब्रह्मस्थान में वॉशरूम, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। अच्छी रहे, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा खाली रहे, वहां पे एक विंडो हो, नॉर्थ ईस्ट खाली हो, नॉर्थ ईस्ट खाली रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है, बिकॉज हमें ना फायर एलिमेंट का जो हमारा आग है काम करने का वो होता रहे, नॉर्थ ईस्ट हमारे पास नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज आती रहे, हेल्थ हमारी ठीक रहे, these are the some of the things which we want. But हमारे घर में सेंटर में कुछ ना हो, नॉर्थ ईस्ट खाली रहे, we should have clarity over clear things over there, and सबसे जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में रहे, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द कपल। एवरीथिंग इज स्मूथ बिटवीन देम, पूरा घर आराम से चल जाता है। साउथ वेस्ट में बेडरूम, सबसे पहले एंट्री हुई है, वहां पे नो किचन, नो टॉयलेट, नथिंग, नो स्टेयरकेस। साउथ वेस्ट में हमारा मास्टर बेड एंड साउथ ईस्ट में किचन। these are some of the things which we need. नॉर्थ ईस्ट खाली, ये 4-5 चीजें अगर हम देख लें तो हमारा घर परफेक्ट है, मतलब क्लोज टू परफेक्ट है, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। और अकॉर्डिंगली आप कलर्स करना प्लीज, कलर्स अगर इधर उधर हो गए तो भी गड़बड़ है, तो कलर्स भी आप अकॉर्डिंगली। Okay. देन सेकंड, अगर आप ऑलरेडी हो किसी घर में तो यू कैन चेंज द कलर्स। सी नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका वॉशरूम है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो वहां पे आप कॉपर वायरिंग कर सकते हैं। कॉपर बेसिकली इट द एनर्जी शिफ्ट का, इट्स लाइक आपने रूम में कट है, द कॉपर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वो हटा देता है। आप वो कर सकते हो, एंड यू कैन सर्च फॉर अ न्यू होम इफ योर टॉयलेट इज इन द नॉर्थ ईस्ट, यू डू नॉट want to live there for more than 5-6 years, don't do that. उसके बाद कलर्स आप यूज कर सकते हो। सपोज वेस्ट स्थान में हमारा यूसी है तो डू नॉट यूज इट, वो वाला भी घर ठीक नहीं है, ठीक है। व्हाइट्स यूज कर लो, अगर आप ऑलरेडी घर में रह रहे हो तो वहां पे व्हाइट्स यूज करो। जो रेमेडीज जो मैं आपको कह रही हूँ, क्लीन रखोगे ना, मैंने आई हैव डन अ वीडियो जिसमें मतलब आई हैव एक्टिवेटेड ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ द होम एवरी डे। यू वेकिंग अप, राइट, यू ओपन द विंडोज, लेट द एयर एलिमेंट कम इन। ट्रू, यस। देन यू आपके घर में हमेशा पोछा झाड़ू लग रहा होता है, वाटर एलिमेंट उसमें है, आप पानी पियो। जस्ट सिट फॉर इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, you sit there in the northeast corner and you sip water, affirm your water, drink it, and आपका पूरा बॉडी भी अपने आप ही अलाइनमेंट में आ जाएगा। यस, तो कर्टन्स खोल दो, लेट द फ्रेश एयर कम इन, ड्रिंक वाटर, बेयर फुट आपके अपने ग्राउंड पे चलो, ग्राउंड हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ग्राउंड एलिमेंट। तो आपको सारे एलिमेंट्स वाली एनर्जीज को पकड़ के रखना है, अपनी बॉडी में भी एक्टिवेट करो, अपने घर में एक्टिवेट करो, एंड यू विल फील द डिफरेंस। ये एलिमेंट वाला अगर आप एवरी मॉर्निंग, मतलब घर खोल देना, लेट द सनलाइट एंड द फ्रेश एयर कम इन, उसके बाद बेडशीट चेंज करना, ये सारी चीज अगर आप बेसिक बेसिक जो हमारी मम्मियां हमें बोलती रहती है और हम करते नहीं है, वही सब कर लेंगे ना, हमारा आधा वास्तु वहीं पे ठीक हो जाए। यस यस यस, डू नॉट जैसे गर्ल्स बेसिकली, आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, कि हमारे पास कपड़े नहीं है, लेट्स बाय दिस आल्सो, एंड व्हाइल डोनेटिंग मैं लाइक कि नहीं यार, ये तो मैंने कभी तो तो पहनूंगी वो वाली चीज मत करो, डोनेट। कुछ है नहीं, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, है ही नहीं, इट इज वेरी It इजी। was already there, इट वाज but ऑलरेडी देयर, it was just ignored. इट वाज इग्नोर्ड लाइक एनीथिंग, बिकॉज आर्किटेक्चर में सारा मास्टर आर्किटेक्ट्स का हम we were taught temples in the history of architecture, but ऐसे सब कुछ लेना है, and these are like affecting us, तो ये Right. हमें I मतलब I think hope this conversation will be heard by many people, and especially architects, and they will know. so. Thank you so much, ma'am, once again for giving your time and being with us on this amazing topic. And I hope the audience get lots and lots of knowledge about Vastu and its relevance to architecture. So thank you so much for calling me, Aditi. It was a pleasure. Thank you so much. Thank you. Bye. Okay, take care. Bye Bye. bye.